आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। Okay. So can anyone tell me what is the long form of ICMP? Internet Control Messaging Protocol. Right. Other than Kocher, can anyone tell me how many types of messages are handled by ICMP protocol? Which kind of messages are handled by ICMP protocol? Yes. Which two types of messages are there, students? Anyone? Error reporting and query message. Very good. Under error reporting, can anyone tell me 2-3 types of messages? बहुत सारे मैसेजेस है, लेकिन एटलीस्ट 2-3 टाइप के मैसेज किसी को बताते आएंगे? कैन एनीवन? यस. सोर्स क्विंचिंग, right? Then destination not reachable. So these messages time exceeded. This message comes under error messages, right? And query messages, echo request, echo reply, then message redirect. Okay, so that type of messages comes under query messages that we have studied. Okay, so that is ICMP 4. Now I have to focus on ICMP 6. As I already told you, ICMP 4 and ICMP 6 both are almost identical, but new features are added in ICMP 6, or new some messages are added in ICMP 6 that we need to understand. That is neighbor discovery message and group membership message. Okay, so these two messages are newly added in ICMP 6. Okay, then so the error messages are almost same. Okay, बाकी के error messages के almost same है. So which two messages are newly added? First one is neighbor discovery protocol and another one is the inverse neighbor discovery protocol. So student, as you already know, in routing table what happened? The router is maintaining the distance or the node which is directly connected with the router. Let's say A is connected with the router 1, R1. Okay, and C is connected with the R2. So R1 is going to find out their neighbor. So which one is the neighbor of R1, A or C? Definitely A, right? So A is the neighbor of R1. So in that way, the neighbor discovery protocol will work. Okay, and what is inverse neighbor discovery? Inverse neighbor discovery is the protocol in which the host is going to detect the neighbor's router. Okay, and what is the neighbor discovery? In that router is detecting the host. तो राउटर ढूंढे जाते, राउटर क्या करता है, उसके साथ जो नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड है वो नेबर को ढूंढने का काम करता है. दैट इज कॉल्ड एज नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल. एंड इन सेकंड केस router is going to, that means hosts are going to identify their immediate neighbors. Those are nothing but the routers. That is called as inverse neighbor discovery protocol. So these two protocols are newly added. After that, we need to understand the next concept that is again very, very important. That is, so students see here, inter-domain and intra-domain routing. What is intra and inter? Can anyone tell me what is inter with the example? The example, can anyone tell me what is inter? Inter क्या होता है और intra क्या होता है? Yes, anyone? No one? So, Yes. so like inter means between two categories. Like for examples, inter-school, inter-college competition happens, whether it in academic or sports. Perfect, perfect. That means if your college, let's say consider the example of sport. Okay, if we are having match of SNJB college with KK college, so can I say that is the inter-college cricket competition? Yes. Why? Because two different teams are playing, and let's say there is a match between
SNJB Engineering and HSJB Polytechnic. So that type of is called as what? Intra-domain, means within the same domain, right? So similarly, there are two types of routing. Let's say मुझे अगर नासिक के नासिक में घूमना है, so multiple routes are there, multiple shortcuts are there within Nasik. Okay, so that is called as intra-domain routing. Okay, and another is inter-domain. Means what? If I want to travel from Nasik to Mumbai, Nasik to Pune, so that is called as inter-domain routing. Okay, so this is what the difference between inter and intra. फिर ऐसा जरूरी होता है कि जब ISP पिक्चर में आता है, बाहर की कोई सिस्टम पिक्चर में आती है, तभी राउटिंग पिक्चर में आता है? No. There are some systems, those are really big in nature. In that case also, routing plays a great role. Let's say KK-WAG is having 4 different branches in Nasik only. So for communicating among 4 different branches of KK-WAG, there is a need of intra-domain routing. And what is intra-domain? When you want to communicate between Nasik and Chanwad colleges, in that case, that type of routing is called as inter-domain routing. Detail in the next slides. So today, internet can be so large, the one routing protocol cannot handle the task of updating the tables. Now tell me, how many routing tables routing protocols we have studied till date? The first routing protocol is RIP. अपन ने पहला routing protocol कौन सा study किया है? RIP. और दूसरा routing protocol कौन सा study किया है अपन ने? Anyone? Can anyone? DHCP? No. DHCP तो ये IP address assigning का method है ना? Dynamic. OSPF. Very good. OSPF, Open Shortest Path First. Okay. और भी है प्रोटोकॉल that is called as BGP, that is Border Gateway Protocol. अभी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता क्या है, ये कैसे काम करता है, मैं आपको बताऊंगा. यहाँ पे आपको क्या ध्यान में लेना है कि इंटरनेट इतना बड़ा हो चुका है स्टूडेंट्स कि एक सिंगल प्रोटोकॉल ये सब चीजें हैंडल नहीं कर सकता है, पूरे टेबल राउटिंग के अपडेट नहीं कर सकता है. सो उस केस में अपने को मल्टीपल प्रोटोकॉल्स लगेंगे जो राउटिंग की चीजों को हैंडल करेंगे. ओके, सो सी हियर पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, अगर आप ये मैं कर्सर घुमा रहा हूं वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. वन राउटिंग प्रोटोकॉल cannot handle the task of updating the routing table. एक सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल, रीप बोलो, OSPF बोलो या BGP बोलो, अगर एक था तो वो पूरा हैंडल नहीं कर सकता है. फिर क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे, वो क्यों नहीं हैंडल कर सकता है? फॉर दिस रीजन इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल सिस्टम्स. लेट्स से अगर पूरा नासिक अगर मैं छोटे छोटे कॉलोनीज में डिवाइड नहीं करता, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड नहीं करता, तो मुझे एड्रेसेस ढूंढने में कितनी दिक्कत होती. सिमिलरली अगर इतना बड़ा इंटरनेट का वर्ल्ड है, अगर मैं इसको प्रॉपरली डिवाइड नहीं करूंगा तो मुझे जो चीजें मुझे रूट करनी है, पैकेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, वो तो हो ही नहीं पाएगा. तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू ऑटोनॉमस सिस्टम. इंटरनेट को क्या किया जाता है, ऑटोनॉमस सिस्टम में डिवाइड किया जाता है. अभी ऑटोनॉमस सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? ऑटोनॉमस सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ नेटवर्क एंड राउटर्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन. Can I say SNJB is autonomous system? Yes or no? Can I say SNJB is the single autonomous system? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes. Obviously, because in SNJB we are having multiple group of network like HSJB Polytechnic, BHMS College, then Central Office, then we can say Art Commerce College, then we can say BHMS College. So we are having multiple systems in that particular network. So what happened in that particular case? In that case, the group of network and routers under the authority, उसी अथॉरिटी के अंडर, लेट्स से वी आर हैविंग अ सिंगल राउटर विथ अस. अपने पूरे संस्था के लिए एक ही राउटर दिया है जो BSNL ने, जो BSNL के भी साथ काम करता है, जियो के भी साथ काम करता है, और वो राउटर अपने पास है स्टूडेंट्स. राइट, तो जो राउटर अपने पास है और सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, मैंने पीछे भी आपको बताया था, अगर मैं बोलता हूँ कि 9:30 से 4:30 बजे तक जब कॉलेज टाइमिंग होता है तो हॉस्टल से इंटरनेट एक्सेस नहीं होना चाहिए. सो अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, यानी मैं अगर मेरे सर्वर पे तो इंटरनेट की केबल
बॉयज हॉस्टल को गर्ल्स हॉस्टल को जा रही है, अगर वो मैं निकाल दूं थोड़े टाइम के लिए, या फिर मैं ऐसा कुछ सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करूं कि 9:30 बजे कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो लाइन ब्लॉक हो जाएगी, अगर मैं ऐसा अगर मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, तो दैट इज कॉल्ड एज सिंगल सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस सिस्टम. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग हियर कि वी आर हैविंग a single autonomous system, in that a group of network and routers are under single administration authority. Routing inside autonomous system is called intra-domain routing. Routing एक ही autonomous system के अंदर होना, उसको बोला था intra-domain. Just अपन ने डिस्कस किया, इसने भी आंसर दिया कोचर ने. ओके, सो इन दैट केस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आप लोग राउटिंग ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर देखोगे इन अ सिंगल, तो इसको बोला था इंट्रा, एंड राउटिंग बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम, SNJB is one autonomous system and KKWAG is the another autonomous system. So that type of routing is called as inter-domain routing. Inter-domain routing. So hope the difference between intra-domain and inter-domain is clear. Yes or no? Yes, sir. Very good. Clear autonomous system. What is autonomous system? Is a group of network and router under same administration authority is called as what? Autonomous system. Okay, then see here. Can anyone tell me how many autonomous systems are here? In this example, how many autonomous systems are there? 3. 3 autonomous systems, and total 3 routers are there. Okay, so this is intra-domain or inter-domain? Inter-domain. Inter. And if we are having only one autonomous system and 3 routers, okay, only first one, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, this is intra-domain or inter-domain? Intra-domain. This is intra-domain routing, right? Because whatever communication is going on, that is within the same autonomous system, right? So that's why it is called as intra-domain. And autonomous system 1, autonomous system 2, autonomous system 3, all these 3 systems are communicating with each other. That is called as inter-domain routing. So we will proceed further. Okay. Autonomous system अपन ने already देखा है, policies same होती है. Students, have you heard about child lock systems are there in the Quick Hills nowadays? Or some policies you can define inside the Quick Hill antivirus software? Let's say आपके घर पे कोई छोटा भाई है आपसे, राइट, या आपसे छोटी सिस्टर है, और उनके अभी आजकल सब इंटरनेट पे होता है, और बहुत बार देखिए क्या होता है, गलत गलत एडवर्टाइजमेंट दिख जाती है, और गलती से भी अगर वो बच्चे ने उस पर क्लिक कर दिया, सो रॉन्ग मैसेजेस आर डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ क्वालिटी पॉलिसी सेट कर सकते हैं स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन पॉलिसीज. एंड अंडर दैट चिल्ड्रन पॉलिसी जितने भी वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट शो हो गए, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं. That means you people are able to define the policies. Similarly, अपने यहाँ पे अपने सर्वर से कौन सी वेबसाइट एक्सेस होनी चाहिए, कौन सी वेबसाइट नहीं एक्सेस होनी चाहिए, अगर ये डिसाइड करना है आपको, so that type of things or the solutions are called as what? Autonomous system with the same policy. Okay. Then 2 types of protocols are available here, or 2 types of routing protocols are there. Intra-domain cover distance vector and link state. Okay, intra-domain यानी आपको विदिन अ सिस्टम कॉल करना है, सिंगल सिस्टम में काम करना है, तो रिप और OSPF के साथ जाओ, चलेगा, रिप और OSPF. और अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ओके, जब कम्युनिकेशन करना है, सो यू गो फॉर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड एज BGP, दैट इज कॉल्ड एज पाथ वेक्टर. तो यहाँ पे 3 टाइप के अपने को एल्गोरिथम स्टडी करने हैं स्टूडेंट्स. पहला होता है डिस्टेंस वेक्टर, जिसमें अपने को डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम स्टडी करना है. दूसरा होता है लिंक स्टेट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो LSA बनाता है, लिंक स्टेट पैकेट बनाता है, LSA, है ना, और वो LSA की स्टेट में वो स्टेट वो मेंटेन करता है. और उसके बाद जो लास्ट वाला देखना है अपने को, BGP, दैट इज बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल. सो व्हेन वी आर लर्निंग अबाउट ऑल दिस प्रोटोकॉल्स, आपको बेसिक तो मैंने रिप और OSPF में ऑलरेडी सिखाया स्टूडेंट. अभी बचा BGP का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तो अपने को सिलेबस में नहीं है, लेकिन BGP एग्जैक्टली काम कैसे करता है. तो इन शॉर्ट, BGP, लेट्स से आई वांट टू ट्रांसफर द पैकेट टू, मुझे पैकेट भेजना है, लेकिन किसको? इफ आई वांट टू ट्रांसफर द पैकेट टू चाइना वाया पाकिस्तान,
Okay, but whatever packet you are transmitting to China, okay, that should not be known, or that path should not be from the Pakistan. Means in order to reach to China, I need to identify the another path, right? So that is called as border gateway protocol. So on border itself, the things are decided. बॉर्डर के ऊपर ही क्या होती है, कुछ चीजें डिसाइड की जाती है. यानी मुझे डेटा भेजना है, लेट से अभी यूएस लेते हैं, चाइना छोड़ दो. ओके, अपने को ना चाइना भेजना है ना पाकिस्तान भेजना है. नाउ वी फोकस ऑन यूएस. ओके, सो जब आप लोग यूएस पे फोकस करते हो, तो एक चीज मैं यहाँ पे सिंपली आपको बताना चाहूंगा कि मुझे यूएस पैकेट भेजना है, लेकिन ना वो पाकिस्तान के इस पे से पास नहीं होना चाहिए. तो यूएस को डेटा अगर भेजना है, तो मेरे पास बहुत सारे राउटर्स है जो कनेक्टेड है यूएस के साथ, यूएस के राउटर्स के साथ. लेकिन मैं ऐसे कुछ पॉलिसी सेट करूंगा कि जिसमें पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जितने भी राउटर्स होंगे, वो सभी को बाईपास करके वो एक अलग पाथ से डेटा क्या करेगा, यूएस गवर्नमेंट को या यूएस कंट्री को डिलीवर्ड करेगा. सो दैट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज कॉल्ड एज बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल. So clear all these three protocols. Shall we go inside? Shall we go in depth of these protocols? Yes or no? समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, क्या दिवाली का फराल चालू हो गया है? सबको नींद आ रही है? ओके, नो इश्यूज. ठीक है, नाउ वी विल सी इन डिटेल वन बाय वन. अभी अपन उसको और क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे. ठीक है, चलो. या सी, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. इन दिस, सी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग. So today an internet can be so large that one routing protocol cannot handle the task of updating the routing table. This part we have already studied. Autonomous system also we have studied. Autonomous routing inside the autonomous system is called as intra-domain. Then distance vector routing is using the part of Dijkstra algorithm. Now we will see this particular part. How distance vector routing is working. No node has a complete information about the cost of all network links. Students, tell me, whatever we are teaching you, are you confident enough कि you know all subject very well in detail? How many of you are confident enough कि सर अभी तक जितने सब्जेक्ट मैंने पढ़े या जितने भी इंजीनियरिंग में है, वो सब में मैं कॉन्फिडेंट हूँ? Is any student, they can raise their hand in chat box. Is any student like that कि सर सब मुझे आता है? ऐसा कोई नहीं है ना. Because somewhere some concept may be missed, or some concept may be unknown to you. You were absent on that day, or that is not known to you. आपने कभी सीखा नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है. So यही चीज यहाँ पे मेंटेन होती है. नेटवर्क इतना बड़ा है स्टूडेंट्स, इतने सारे कंप्यूटर जुड़े हैं, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि हर पर्सन पहचान का ही होना चाहिए? मोदी जी को हर बंदा पहचानता होगा, लेकिन हर बंदे को मोदी जी नहीं पहचानते. That means no node has complete information about the cost of all network links. सभी नोड को सभी का इंफॉर्मेशन नहीं होता है. ग्रेजुअल कैलकुलेशन इज नीडेड. ग्रेजुअल कैलकुलेशन इन द सेंस व्हाट? देखिए, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. मुझे बहुत अर्जेंट काम है और वो मोदी जी के बगैर नहीं होगा, लेकिन मोदी जी को मिलना भी तो इतना इजी नहीं है. फिर मैं क्या करूंगा? आई विल आइडेंटिफाई द लीडर फ्रॉम नासिक. नासिक के लीडर को कांटेक्ट करूंगा. दैट नासिक लीडर विल कांटेक्ट टू द मुंबई. मुंबई विल कांटेक्ट टू दिल्ली. इस वे से मैं कांटेक्ट करते करते अगर जाऊंगा, तो शायद से मुझे मोदी जी को मिलने का चांस मिल जाए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ग्रेजुअल मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. सिमिलरली ग्रेजुअल कैलकुलेशंस इज नीडेड. आप लोगों को डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम याद आ रहा है सभी को? ऑल ऑफ यू आर अवेयर डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम? यस, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम याद आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एनीवन डिजक्स्ट्रा पढ़ा है नहीं पढ़ा है? नो वन नोज डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम? मानसी,
विशाल, साहिल, देन इट शॉकिंग। डिजेस्ट्रा तो बहुत फेमस था। नोमन, यस सर। डिजेस्ट्रा एल्गोरिथम नहीं पढ़ा आप लोगों ने? हाँ, अरे ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में था ना, अमोल अमोल सर पढ़ाते हैं ना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, ओके सी हियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी चीज बताई। लेट्स से नेटवर्क में 100 नोड है, 100 नोड को 100 नोड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी, लेकिन एक नोड दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ कनेक्ट कर करके आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके सभी नेबर्स आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ईच नोड कंस्ट्रक्ट वन डायमेंशनल अरे, वो वन डायमेंशनल अरे कंस्ट्रक्ट करेगा और उसके ऊपर उसका वेट लिखा रहेगा कि किस डिस्टेंस पे वो कनेक्टेड है। लेट्स से मेरी लैब यहां से, और व्हाट आई कैन से, यहाँ से मनमाड़ कनेक्टेड है एक 24 किलोमीटर पे, यहाँ से नासिक कनेक्टेड है एक 68 किलोमीटर पे, यहाँ से पिंपलगांव कनेक्टेड है एक 48, यानी हर अपना अपना क्या बना रहा है, एक वन डायमेंशनल एरे बना रहा है और उसके सभी के कॉस्ट वो फाइंड कर रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इमीडिएट नेबर्स। इमीडिएट नेबर्स में कौन है, नासिक, मनमाड़, तो सभी को, नासिक को पता रहेगा कि चांदवड़ से नासिक का, सॉरी मनमाड़ को पता रहेगा कि चांदवड़ से नासिक का वेट कितना है, उसके बाद नासिक को पता रहेगा कि चांदवड़ से मनमाड़ का है, वो खुद के टेबल्स एक्सचेंज करेंगे, खुद की कॉस्ट एक्सचेंज करेंगे और उस वे से वो क्या करेंगे, डन करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द थिंग्स। देन इफ नो लिंक एग्जिस्ट बिटवीन टू नोड्स, द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द नोड इज इंफिनिटी। दैट मीन्स, अगर मुझे बताइए, इज देयर एनी डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम चांदवड़ टू मुंबई? डायरेक्ट कनेक्टिविटी है क्या स्टूडेंट? नहीं। अंदर कौन है, अंदर कौन है, नासिक है। तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी जहां पे नहीं रहेगी वहां पे डिस्टेंस, आपको शायद डायग्राम बताऊंगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सी हियर, द लीस्ट रूट बिटवीन एनी टू नोड इज द रूट विद द मिनिमम डिस्टेंस। जितना, यानी आपको मल्टीपल पाथ मिलेंगे और मल्टीपल पाथ में से यहां से नासिक पहुंचने के लिए अगर 4 पाथ होंगे और उसमें से सबसे कम डिस्टेंस वाला जो पाथ रहेगा वो मेरा फाइनल पाथ रहेगा। Each node maintain the vector of minimum distance to every node. Each node also guide the packet to desired node by showing the one hop routing. Okay, by showing the one hop routing. तो उस वजह से वो one hop routing को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। Let's assume node as a cities. Okay, आपने क्या किया, हर नोड को as a city पकड़ा एंड जो रोड उनको कनेक्ट करते हैं उसको क्या पकड़ा, आपने लाइंस पकड़ा। See here, अभी अपने को प्रोसीजर देखना है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग काम कैसे करता है। अभी जो आप लोगों ने नहीं आंसर दिया, मैं फिर से बता रहा हूं, शायद आपको कुछ रिकॉल हो जाए। ओके, अब ये प्रोसीजर आप लोग प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करवा लीजिए। एट द बिगिनिंग ईच नोड नो द कॉस्ट ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स इमीडिएट नेबर। ओके, एट द बिगिनिंग ईच नोड नोज द कॉस्ट ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स इमीडिएट नेबर। सबसे पहले वो उसको खुद का कॉस्ट पता रहेगा। चांदवड़ से चांदवड़ का पहुंचने का अंतर तो 0 ही है ना, और इमीडिएट नेबर में मनमाड़ आता है, वडाई वही आता है, तो उनके कॉस्ट पता चल गए। Distance of any entry that is not neighbor is marked as infinite. Chanwad is not directly connected with the Nasik because Vadai Bhui there, Pimpalgav is there. So Chanwad to Nasik is directly marked as an infinity. Okay, see here. अभी इस डायग्राम पे से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी स्टूडेंट। सी, मुझे बताइए A to A तक पहुंचने का कॉस्ट कितना रहेगा? A को A तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा? 0. वेरी गुड। A to B, 5. 5. A to C, 2. A to D, 3. A to E. Now tell me, is A is directly connected with E? No. So that distance is treated as a, 6. see here, the distance of any entry that is not neighbor mark as a infinite. That's why E का डिस्टेंस A to E पहुंचना है ना, A डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है स्टूडेंट्स, A is not directly connected. That's why A जब डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है तो आपने वहां पे इन्फिनिटी लिखा। ओके, वाया सी आप जा सकते हैं, लेकिन अपना पहला जो टेबल है, जो स्टार्टिंग प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेप जो अपन ये फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, आगे के स्टेप में आप बोलोगे कि सर सी के थ्रू पहुंच सकते हैं, वो आगे के स्टेप में आएगा स्टूडेंट। अभी मत ध्यान दो, अभी सिर्फ इतना ही ध्यान दो। अभी सभी के टेबल अपन ने बना लिए, अभी इस टेबल में कुछ कंफ्यूजन है क्या? देखो,
आप सभी लोग एक नजर घुमा लो इस टेबल के ऊपर. एवरीवन जस्ट गो थ्रू दिस टेबल. Everyone just go through this table. All these tables are clear. Yes, sir, clear. Okay. सब बाकी के बच्चे, कोई हाँ भी नहीं बोलता, नहीं भी नहीं बोलता. उसने अकेले ना, उसको अकेले कोई पढ़ा था वैसे लगता है मेरे को. तो तेजस्विनी मैडम, समझ में आया क्या? साइली, Yes, sir. सेजल, गांधी. Yes, sir. ओके, ये पहला स्टेप हो गया स्टूडेंट, जिसमें जो जो डायरेक्ट कनेक्टेड थे उन सभी के साथ अपन ने क्या कर लिया, डिस्टेंस फाइंड किया. जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे उनको इन्फिनिटी बता दिया. चलो आगे के स्टेप पे चलते हैं. ओके, सी हियर. अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज शेयरिंग. किसी ने बोला ना कि सर सी के थ्रू पहुंच सकते हैं, वो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट. यानी ए बोलेगा मेरा तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन सी बोलेगा तू टेंशन मत ले, ई मेरे साथ कनेक्टेड है और मैं तेरा कम्युनिकेशन करवा दूंगा. तो वाया, तो अभी शेयरिंग पार्ट आया. तो फर्स्ट टेबल में सबने अपना अपना डिस्टेंस कैलकुलेट किया. अभी शेयरिंग का देखिए. आइडिया इज टू शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन नेबर्स. द नोड ए डज नॉट नो द डिस्टेंस अबाउट ई, बट नोड सी डज. सी को पता है. इफ नोड सी शेयर इट राउटिंग टेबल विथ ए, देन नोड ए ऑल्सो नो अबाउट हाउ टू रीच टू ई. जब नोड सी खुद का राउटिंग टेबल ए के साथ शेयर करेगा तो ए को भी समझ में आएगा कि मुझे ई तक कैसे पहुंचना है. ऑन अदर हैंड नोड सी डज नॉट नो हाउ टू रीच टू डी. देखिए, ऑन अदर हैंड नोड सी को नहीं पता कि डी तक कैसे पहुंचना है. तो फिर ए क्या बोलेगा, तूने मुझे हेल्प किया था ई तक पहुंचने के लिए, चल मैं तुझे हेल्प करता हूं डी तक पहुंचने की. सो इन दैट वे डी, बट ए डज. सो ए शेयर इट्स राउटिंग टेबल शेयर करेगा. और वो तो आपको याद है स्टूडेंट्स, जब अपन ने देखिए जब वो पैकेट ट्रेसर के अंदर अपन ने टोपोलॉजी स्टडी की थी, फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन फेल हुआ था. क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम सिर्फ उनका खुद का इंफॉर्मेशन खुद के पास था. सेकंड टाइम जब किया तो टेबल शेयर हो चुके थे, और टेबल जब शेयर हुए तो आपका इंफॉर्मेशन पहुंचना शुरू हो गया था स्टूडेंट. ओके, तो ये हुआ शेयरिंग. हाउ मच द टेबल मस्ट बी शेयर्ड विद द नेबर. द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल इज नॉट यूजफुल फॉर द नेबर. थर्ड कॉलम कौन सा है? देखो, ये वाला, नेक्स्ट होप वाला, इज नॉट यूजफुल फॉर द नेबर. ओके, ये थर्ड कॉलम कैसे काम करता है, किस वजह से, अपन आगे देखेंगे. यहाँ पे देखिए, बी टू बी. अभी ई तक, ये ई का टेबल है. अपने को बी, अपने को क्या करना है, ई टू ए पहुंचना है तो इन्फिनिटी आ गया. ई टू बी पहुंचना है. अगर ई टू बी पहुंचना है तो डिस्टेंस कितना है? 3. ई टू सी पहुंचना है तो डिस्टेंस कितना है? 4. बराबर. और ई टू डी पहुंचना है तो इन्फिनिटी. और ई टू ई पहुंचना है तो आपको पता ही है, दैट इज 0. तो ये हो गया आपका पहला स्टेप. उसके बाद आपने सेकंड स्टेप देखा, जिसके अंदर आप लोगों को समझ में आया कि शेयरिंग कैसे होता है. फिर उसके बाद थर्ड कॉलम कैसे काम करता है मैं आपको बताऊंगा. ओके, इफ एनी रोज कैन बी यूज द नेक्स्ट कॉलम फील्ड विद द सेंडर टेबल. ओके, अब ये कैसे काम करेगी, किस वे से, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा स्टूडेंट, डोंट वरी. सी हियर. अभी आप लोगों ने क्या किया, अपडेटिंग इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग टेबल फ्रॉम सी टू ए. आपने को वो टेबल अपडेट करना है सी टू ए का. अभी देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम सी, ये सी का टेबल है. एक सिर्फ नजर घुमा लीजिए आप लोग. ओके, ए 2, बी 4, सी 0, डी इंफिनिटी और ई 4. ऐसा ही क्या? देखो, सी का टेबल देखिए वैसा ही है. 2 4 0 इंफिनिटी 4, 2 4 0 इंफिनिटी 4. ये आ गया सी का टेबल. अभी ए का टेबल देखो कैसे मॉडिफाई. शेयरिंग चल रहा है ना स्टूडेंट, शेयरिंग इज गोइंग ऑन. अभी यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो जो ए का मॉडिफाई टेबल है वाया सी. ओके, अभी ए का जो टेबल है यहाँ पे देखो, ये 2 था, अभी ये क्या हो गया 4. अभी 4 कैसे आए देखते हैं अपन. सी ए टू सी एंड सी टू ए, कितना हुआ? 4. 4. 4. Okay, so we have written there. Now what is next? A to
अपने को बी बट वाया सी ना, ए का टेबल मॉडिफाई करना है ना, तो देखो तो डिस्टेंस बोलो, ए टू बी बट वाया सी कितना होगा? 6. ये देखो ए टू बी पहुंचना है बट वाया सी ना, सो 2 + 4 6 हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखा वाया सी, तो तीसरा कॉलम देखो आपको समझ में आएगा। अभी देखो सी टू सी, ये तो 2 ही आएगा। अभी देखिए ए टू डी वाया सी, देखो तो ए टू डी वाया सी, ए टू डी वाया सी, इज देयर एनी 5 स्टूडेंट्स? No, sir. तो क्या आएगा? Infinite. इनफाइनाइट, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं वाया सी, एंड ए टू ई वाया सी 6 बताया। देखो तो ए टू ई पहुंचना है वाया सी, तो 2 + 4 कितना हुआ? 6। सो क्या ना से माय टेबल इज अपडेटेड। देखो पहले का टेबल क्या था, पहले ये डिस्टेंसेस थे, अभी आपके टेबल में डिस्टेंसेस देखो क्या हो चुके हैं, मॉडिफाई हो चुके हैं। ओके, नाउ अभी देखिए ये ओल्ड टेबल, ये नया टेबल, दोनों को कंपेयर करो, और कंपेयर करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्टेंस समझ में आएगा। जहां पे आपको इन्फिनिटी फील्ड मिली थी वहां पे आपको नया टेबल मिला, में इन्फिनिटी का इश्यू था वो रिजॉल्व हुआ। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया आपको? ओके, वेरी गुड। सिमिलरली आपको क्या करना है, बाकी सभी टेबल्स के लिए भी अपने को उस वे से निकालना है। देखो ये सब डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए, ये बहुत अच्छे से दिया आपको। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप जो खुद से पढ़ोगे तो और ज्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टेबल। सो सी द फाइनल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ये आपका पूरा, ये सभी टेबल के कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद जो जो इन्फिनिटी था वो सब रिजॉल्व हो गया स्टूडेंट। ये तो एक टेबल के लिए बताया, वैसे आपको सभी टेबल्स के लिए निकालना है। ओके, इस वे से आप लोगों का क्या हो जाएगा, पूरा की पूरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। आपको फाइनल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग टेबल मिलेगा, और डिजेस्ट्रा के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू आप लोग पहुंच पाओगे। ओके, तो शॉर्टेस्ट पाथ ए टू ई तक पहुंचने का वाया सी होगा, और कोई दूसरा पाथ ही नहीं। आपको दिख रहा है क्या, मुझे बताइए? शॉर्टेस्ट ए टू ई पहुंचने के लिए वाया सी है, आपको और कोई दूसरा पाथ दिख रहा है क्या? No. सो ये डिजेस्ट्रा था, आप लोगों को याद नहीं आया ये चीज? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ओके, अब ये पीरियड देखो, ये रिप पे काम करता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था रिप प्रोटोकॉल किस पे काम करता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। तो ये हर 30 सेकंड्स के अंदर अपडेट करते रहेगा टेबल, ये जो टेबल्स है ना, ये वाले टेबल, ये राउटिंग टेबल, इसको खुद को क्या करते रहेगा, अपडेट करते रहेगा। ओके, और देखिए अ नोड सेंड इट्स राउटिंग टेबल टू इट्स नेबर एनी टाइम व्हेन देयर इज अ चेंजिंग राउटिंग टेबल। ओके, आफ्टर अपडेटिंग इट्स राउटिंग टेबल और डिटेक्ट सम फेलियर इन द राउटिंग लिंक्स, ये भी चलेगा, और फेलियर के बाद भी वो ट्रिगर्ड करते रहेगा, तो दोनों वैसे से अपडेट होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को अपन नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडेज पेपर, एंड टुमारो वी आर हैविंग द CN पेपर, राइट? तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, और काफी अच्छे से पढ़ाई करके मुझे बताइए, ठीक है? थैंक यू।